आ जाओ, स्टार्ट करो। बस ये हिले नहीं देखना। नहीं, ठीक है, सब प्लीज मेंटेन साइलेंस। अच्छा, समझ गया। एक कोई तो चुप रही हो, वो देखना वो वायर नहीं लगेगा। ऊपर भी कर सकते हो, ट्राई करें। ओके, डोंट लाफ एंड प्लीज स्टार्ट। ठीक है। So before starting, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। chaos मत क्रिएट कीजिएगा, क्वेश्चन ना। क्या आप लोग एक गिलास पानी पी सकते हैं? कोई नहीं पी सकता। पी सकते हो? हाँ, सब पी सकता है, एवरीबॉडी। बट ग्लास का कोई एक यूनिट फिक्स नहीं होता है। कोई इतना बड़ा ग्लास भी होता है, कोई इतना बड़ा ग्लास भी होता है। मेरा क्वेश्चन, मैंने इतना बड़ा ग्लास दिया, 2 किलो क्या? नहीं ना, रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंटिफिकली सोचिए। So let's begin. Good morning everybody and welcome to our presentation. My name is Sachin Kumar. This is Satyam Ojha. This is Ankit Kumar. First of all, I would like to thank Soni ma'am also for giving us such the opportunity. Ma'am, we got to learn a lot from this project. And thanks to my mates also who contributed to this project. So the topic of our presentation is planning. So today we will discuss 3 main points. First, its definition, second, its importance, and third, its features. So I would like to invite the next presenter as Satyam Ojha. He will describe you about the definitions of planning. Now, Satyam. So the first question arises here. What is planning? Planning can be defined as thinking in advance. What is to be done? When is to be done? How is to be done? And by whom it should be done. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. Planning also involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action. And another important ingredient of planning is time, because planning are developed for a fixed period of time. No one can go planning endlessly. For example, अभी जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करता हूँ, प्रेजेंट में हमें प्रेजेंटेशन असाइन किया गया सोनी मैम के द्वारा, और इस प्रेजेंटेशन में अगर हम फोकस करते हैं या फिर हम गौर करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में भी यहाँ भी प्लानिंग इन्वॉल्व है। हाउ? मैं फिर से एक बार रिकैप करना चाहूंगा। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करेंगे, हाउ इज टू बी डन, कैसे करेंगे, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, कौन कौन करेंगे। तो यहाँ में ये सारे का जब हमें आंसर मिलता है तो हमें ये पता चलता है क्या एडवांस में एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो रहा है, और जब हमें ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन मिल जाता है तो फिर प्लानिंग डन हो चुका होता है। कैसे? प्रेजेंटेशन तो फ्यूचर में है, लेकिन एडवांस में हमें क्या करना है, थिंक करना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। थैंक यू ऑल। And I would like to invite Ankit Kumar as a next presenter. I am discussing about importance of planning. So the first importance is planning provide direction. Planning is concerned with predetermined course of action. Planning makes clear what employees have to do, how to do, etc. Planning provide direction to the effort of employees. Second point is planning reduces the risk of uncertainties. As we all know, organizations have to face many uncertainties and unexpected situations every day. Planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past recorded experiences. However, planning are made to overcome such uncertainties. And the third point is planning reduces overlapping of activities. The organization plans are made keeping in mind the requirement of all other departments. If the departmental plans are derived from the main organizational plan, as a result, there will be complete coordination among different departments. On the other hand, if the manager, non-manager, and employee are the following course of action according to plan, then there will be complete coordination among different departments. And the fourth point is
And the fourth point is planning promotes innovative ideas. Planning requires high thinking and is an intellectual process. So there's a great scope of better thinking, better ideas. Planning process force manager to think differently, so it make manager innovative and creative. Thank you. That's it for me. I would like to invite Sachin as next presenter. So now, I will discuss about the features of planning. So the first feature is planning is the primary function. Primary means at the very first. So firstly we will do planning and then we will do other functions like organizing, staffing, directing and controlling. A manager cannot decide or do any other function without planning. So planning is the very base activity. If there is no base, the building cannot be constructed. Now, the second point is planning contributes to objective. Objective means goals. If there is no goal, there is no purpose, then why will we do planning? The question is here, why we will do planning? So, planning determines the objective of the course of action. After setting of objective, planning decides the steps, the methods and the procedure for the achievement of that objective. Now, the third feature is pervasive. Pervasive means it means simple. Present in all, present in everywhere. Pervasive means present in all, present in everywhere. It is present in every type of organization. Doesn't matter what is size and what is nature. Let's say even at school, even at colleges, even at home also we will do planning. We also do planning everywhere. No? So let's take an example of organization. There are 3 levels of organization, 3 levels of management. First, the top level, second, the middle level, and third, the lower level. So at the top, the manager decides the course of action. They decide the plan as the whole for the organization, not for the individual, as the whole. Now, the middle level manager, they decide the departmental plans only. Okay, departmental plans. Let's say production manager. Production manager, what? They will decide the plan for the production department. Sales manager will decide for the sales department only. Now at the lower level also do the planning, but for the day-to-day basis only. Okay. Now the next 3 features will be described about. Satyam will describe the next 3 features. Planning is the futuristics. Planning always means looking ahead, or planning is a futuristics function. Planning is never done for the past because planner try to make prediction and assumptions for the future, and these predictions and assumptions are made on the basis of past experiences and with the regular and intelligent scanning of general environment. For example, sales forecasting is the base on which business enterprises prepare its annual plan for the sales and productions. The 5th feature of planning is planning is a continuous process. How planning is a continuous process? Planning is a never-ending or a continuous process because planning is never done for the past. Because after making plans, also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. So after making plan, the planner keep making changes in the plan according to the requirement of the company. For example, if the plan is made during the boom period and during its execution, there is a depression period. So the planner must have to make changes in the plan according to the condition prevailing. The 6th and the last feature of planning is a involved decision making. The planning function is needed only when different alternatives are available, and we have to select the most appropriate and we have to select the most suitable alternatives. So we cannot think or imagine planning in the absence of choice. So after making plan in planning function, for example, जैसे कि हमारे पास अभी प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, हमारे पास अगर सोनी मैम अभी कोविड पिक पे होता और सोनी मैम ने हमें प्रेजेंटेशन असाइन किया था और इस प्रेजेंटेशन को असाइन करने के पहले हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव होता कि मैम इस प्रेजेंटेशन को सिर्फ ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा सकती थी. तो देन देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव
अगर यहाँ एक ऑल्टरनेटिव है तो यहाँ पर प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैम के पास एक और ऑल्टरनेटिव होता ऑनलाइन मोड का, तो फिर मैम जाके ऑनलाइन मोड में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने लोग आके एक ग्रुप में प्रेजेंटेशन देंगे, ये मैम एडवांस में डिसाइड कर सकती थी। थैंक यू एवरीवन। Want to ask a question, you may ask. Anyone, if you want to ask, or otherwise, thank you. Very good. और कोई है? और किसी का प्रेजेंटेशन है? यस क्लास, और किसी का प्रेजेंटेशन है? नहीं, यही है, मैं दे दूंगी, डोंट वरी, आई विल गिव यू। और कोई है जिसका प्रेजेंटेशन अभी मैं पूछ रही हूँ? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, कंटेंट कहीं कहीं पे कमी भी थी, लेकिन वेल डन। आई हैवंट एक्सपेक्टेड सच प्रेजेंटेशंस फ्रॉम दिस बैच, तो मजा आ गया इस क्लास के प्रेजेंटेशन देख करके। लेकिन जिनके नहीं हुए उनका क्या? उनका क्या? यस क्या हुआ? कोई है क्या? है तो फिर मुझे जल्दी बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। नहीं है रिया, आप कोई नहीं, आप कोई नहीं है उधर से, ठीक है, कोई बात नहीं। यस कोई नहीं है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। कहीं सत्यम, मेरे ख्याल से सत्यम ओझा, रोल नंबर बताना। सत्यम ओझा 66, अंकित बहुत अच्छा, अंकित बहुत अच्छा, कीप इट अप। सचिन 67, तुम्हारा भी बहुत अच्छा था। अंकित कहीं सत्यम आप थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा सा भूले, बट इट डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जितना आप मिस आउट किया उतना किसी से भी हो सकता है, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन था, अच्छे से आप लोगों ने ग्रुप एफर्ट दिखाया, अच्छा किया। इस क्लास में एक ही प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है ऐसा भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंटेशन ठीक हुए। जिन्होंने सबसे पहले किया उनमें थोड़ा सा ज्यादा ग्लिच थे, लेकिन वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे वो दूसरी तीसरी बार करेंगे वो उस पे इम्प्रूव कर जाएंगे। मुझे बताओ कि मुझे अब कौन सा टॉपिक शुरू करना है, क्योंकि अब मुझे अपना भी तो सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। आप लोग एक दिन में 3-4 प्रेजेंटेशन दे दीजिए, इससे बहुत टाइम बचेगा, उससे बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 या 5 बैच का तो हो चुका है इस क्लास में भी, है ना। You people are trying well, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और ये दिख रहा है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, और मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ठीक है ना, आज कि आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर आप इस परफॉर्मेंस को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, इस क्लास के बच्चे, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो इसी तरह से कंटिन्यू रखे अपना एफर्ट, और जो नहीं भी कर पा रहे वो भी अगर अपना 100% देते रहेंगे, तो आपका रिजल्ट, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गोल की बात कर रही हूँ, बीबीए से बेहतर आएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तो बीबीए के कुछ बच्चे आपके कंटेम्पररी और कुछ बहुत कम है, अभी उनको बहुत ऊपर आने पड़ेगा। यू पीपल आर डूइंग, मतलब आप उनके एट पार हैं या उनसे ऊपर है, ये समझिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बस ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए हर एक क्लास में, हर एक सब्जेक्ट में और हर एक ईयर में, ठीक है ना। कि कुछ बच्चे शुरुआती ईयर में तो दिखाते हैं, बाद में कमजोर पड़ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा है सबका, चलो ठीक है। मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे ये बताओ, मुझे वो भी याद नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे बस, हाँ याद आ गया। मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि कल मैं वही पढ़ाने का सोच रही थी और किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो रह गया। मतलब आप लोगों ने ज्वाइन किया और मैंने भी स्टार्ट किया, बट व्हाटएवर, वी डोंट गेट कनेक्टेड, ठीक है ना। चलो कोई भी वजह रही हो, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए एक दूसरे से। तो मुझे लगता है मुझे ऑर्गेनाइजेशन मैंने खत्म कर दिया था, राइट, और हमको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन बताना था। चलो मैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू कर रही हूँ।
रहता है, इसलिए मैं निकाल ली है। सब लोगों का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या दूं? अरे तो मेरा जितना लंबा चलेगा मैं उतना ही में से दे सकती ना, बाकी के भी देंगे और फिर नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा, बट अभी जिसने नहीं दिया वो भी दो, बाकी के टीचर से भी लो असाइनमेंट, वो भी देंगे आपको प्रेजेंटेशन करने का। ठीक है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी को याद है? क्योंकि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कमिटी ऑर्गेनाइजेशन? कमिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, जो ऐसे नहीं होगा ना, सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर स्पेसिफिक टास्क। कमिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस से जब हम एक साथ जुड़ते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं, टेम्पररीली, नॉर्मली ये टेम्पररी होता है, परमानेंट भी हो सकता है, राइट? परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस पे काम करेगा, उसको हम कमिटी बोलते हैं। तो कमिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होता है मैं बताती हूँ। दुर्गा पूजा समिति, राइट, जो सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो गांव में या शहर में जो हमारे गली मोहल्ले में कोई भी पूजा का समिति बनता है, उसका अपना एक पर्पस होता है, लेकिन उसमें एक कमिटी बनता है, राइट? वो कमिटी अलग अलग चीजों का केयर करता है, ठीक है ना? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की पूजा करने की, किसी की कोई जिम्मेदारी, तो वो उस एक प्लीज क्लास किसी एक जिम्मेदारी को सपोर्ट करने के लिए वो कमेटी बनाया जाता है। समझ में आया? जैसे कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीमेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें एक कमेटी हो सकता है, अभी है नहीं, पर एक कमेटी हो सकता है जो ये देखे कि हर क्लास की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, राइट? तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहाँ लूपहोल से पहले उसको आइडेंटिफाई करें और उसको फिर कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए बोले। अभी मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके यहाँ हमारे कंट्री में लीगल व्यवस्था है, ठीक है ना? ऑल लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट्स आर देयर, पुलिस डिपार्टमेंट्स आर देयर, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा कोई हत्याकांड हो जाता है, कोई बहुत बड़ा कोई घटना हो जाता है, तो उसके लिए अलग से कमेटी गठित की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो पूरे पुलिस महकमा को उसमें ना इन्वॉल्व होने पड़े, सर्टेन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उस विभाग में, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए जो इस केस का छानबीन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और फाइंड आउट करेगा व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, राइट? तो ये हुआ ना एक मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पांसिबल है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ये स्पेसिफिक कमिटी। समझ में आया? ये हर जगह यूज हो सकता है। मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल दिया, इसी तरह एजुकेशन में हो सकता है, जैसे कि हमारे पीएम मोदी के गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए कमिटी कर दिया, राइट? इस कमिटी में सारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और इसरो के जो हेड थे, इन सबको चीफ बनाया गया उनको, ठीक है? इसरो चेयरमैन को इस कमिटी का चीफ बनाया गया और उन लोगों को बोला गया कि आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है ना? क्या क्या फॉल्ट है, आप उसको फाइंड आउट करके उसको कैसे हम खत्म करके एक अलग तरह का पॉलिसी ला सके, जिससे प्रोफेशंस भी, जो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ऑक्यूपेशंस भी बढ़े और जिससे कैरेक्टर का भी बेहतर निर्माण हो। जितना भी हरास हुआ है हमारे जो भी है, तो मैं बता रही हूँ और ये सच बता रही हूँ, ठीक है ना? आप लोग भी रिसर्च करेंगे अपने फैमिली में ही तो आपको मिल जाएगा, फैमिली में रोज बरोज में, जो आज से पहले 50 साल, मैं 50 साल में, ठीक है ना? ये 2-4 साल की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम 2-4-10 साल में बर्बाद नहीं होता, वो धीरे धीरे होते होते होता है, जो अब हो चुका है, राइट? मैं ये बोल सकती हूँ कि अब हो चुका है, लेकिन यस 50 साल पहले, ठीक है ना, 50-60 साल पहले क्या गवर्नमेंट स्कूल के, राइट, गवर्नमेंट स्कूल के 10th ड्रॉप आउट को उठा लीजिए और आज के अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट को सामने बैठा दीजिए, वो 60 साल का पुराना जो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल का ड्रॉप आउट है, यानी कि जो मैट्रिक फेल है, वो भी उनको हरा सकता है मैथ्स लो जो भी एक सब्जेक्ट चुनिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उस समय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा होता था कि जो फेल भी होते थे वो भी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत पारंगत होते थे, राइट? वो क्वालिटी होता था। धीरे धीरे क्या हुआ एजुकेशन का, कम से कम हम गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो अब देख ही सकते हैं, ठीक है ना? एक टाइम था जहाँ लोग जाते थे, अच्छे लोग जाते थे और अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन अब वही बात है, जब भी मैं ये सब बहुत देखती हूँ तो मैं
मुझे एक ही चीज याद आता है, अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। ये मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कविता का लाइन है, जिसका मतलब ये नहीं कि कोई पीने वाला नहीं है और उस तरह का नयकदा नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि ना उस तरह के जुझारू स्टूडेंट है और ना ही उस तरह के डेडिकेटेड टीचर्स हैं, सब अपने अपने मतलब के होते हैं, राइट। तो जब आपका गोल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा तो आप वहां पे फोकस नहीं कर पाइएगा। उस समय टीचर समाज निर्माण के लिए आगे आते थे, वो चाहते थे कि हमारे क्लास के कुछ बच्चे अच्छे बने, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो वो अपना जितना ज्ञान था उनके पास सब सिखा देते थे। ये कुछ अपने पास रख लेते थे, ऐसा नहीं होता था क्योंकि मेरा स्टूडेंट हमसे ज्यादा आगे ना चला जाए, ये इंटेंशन नहीं होता था उस टाइम के टीचर्स को। घर से उठा के ले जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ेगा कैसे भी, ठीक है। उस समय थोड़ा दंड भी मिलता था, राइट, थोड़ा कठोर व्यवस्था थी, लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत कारगर था, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अब है भी नहीं, और कुछ लोग है भी तो अपने 80s में है, राइट। तो वो लोगों को देखोगे ना तो पता चल जाएगा, उनकी क्वालिटी आपको मालूम हो जाएगी कि वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे और इंग्लिश आपको ग्रेजुएट लेवल के बच्चे को इंग्लिश पढ़ा देते थे। कैसे? हाउ कम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते ना, लेकिन वो इंग्लिश में भी विद्वान होते थे। हाँ, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कमजोर भी हो सकते हैं, ये भी होता था, लेकिन उस समय का स्टैंडर्ड था एजुकेशन का, जो धीरे धीरे क्या हो गया, कहीं ना कहीं नीचे आ गया। कैसे आ गया वो आप लोग देखेंगे या मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक मेन सेटअप है, या तो एजुकेशनल सिस्टम हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर आप किसी भी चीज को बात करो, देश चलाने की बात करो, उसका एक मेन ऑर्डर है, हायरार्की है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कमेटी बनाई गई है जो या तो परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, 1 साल 2 साल 4 साल, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो कमेटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म हो जाना, हाँ, उसको डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके लोग फिर अलग अलग बट जाएंगे, तो इसको हम कमिटी बोलते हैं, राइट। कमिटी को इसी तरह से न्यूमैन ने डिफाइन किया है, यू कैन सी हियर, अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी कि कंट्रोलिंग एक्टिविटी, फॉर्मुलेशन एक्टिविटी, राइट, जो हम नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट में करते हैं, उस तरह के काम को करने के लिए जब स्पेसिफिकली किसी कमेटी को डिजाइन किया जाता है, मैंने कहा ना दुर्गा पूजा समिति, वहां पे जो कमेटी मेंबर होते हैं यही तो करते हैं, कुछ लोग फंड्स का देखभाल करते हैं, कुछ लोग हाईवे का देखभाल करते हैं, कुछ लोग प्रसाद का देखभाल करते हैं, सबको मिला के मिला, या फिर क्या प्लान किस तरह से हम कर पाएंगे, राइट। तो ये उनको बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो ये सारे पर्पज से जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कमिटी बोलते हैं। अब ये कमिटी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पहले कमिटी का क्या नाम है, एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटी, इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में और एक एडवाइजरी बॉडी देख चुके हैं, क्या, स्टाफ, बिल्कुल, इसका भी वही काम है, नाम ही एडवाइजरी कमिटी। यानी ये कमिटी, जैसे मैंने अभी बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उस कमिटी ने क्या किया, पूरा रिसर्च किया, ठीक है, अलग अलग देशों में क्या कैसे कैसे चल रहा है एजुकेशन, वहां पे किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है, या क्या क्या लूप होल्स थे जिसको हटाकर क्या और ज्यादा डेवलप किया गया, वो सब स्टडी करके आपको सजेस्ट किया, कंक्लूजन निकाला अपने रिसर्च का, और 12.5+3+2 जो भी उनको देना था उस तरीके का उन्होंने कंक्लूजन सम अप करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर, राइट। उस बोर्ड ने क्या काम किया, अपने एडवाइस को अपने रिसर्च के बेसिस पे कंक्लूड करके उस कंक्लूजन को गवर्नमेंट के पास सौंप दिया। अब गवर्नमेंट की मर्जी को वो उसको इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, तो इट एक्टेड लाइक स्टाफ ऑथोरिटी, राइट, एडवाइजरी बॉडी है, इन्होंने आपको एडवाइस दिया कि देखिए हमने 3-4-5 साल मेहनत कर लिया इस टॉपिक पे और हमारा ये कंक्लूजन है, अब इट इज अप टू यू, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते तो करिए, नहीं तो जैसा आपका चल रहा है उसी तरह चलाते रहिए, आपकी मर्जी। समझ में आया? एडवाइजरी कमेटी इसी को बोलते हैं, जहां पे वो उनका काम होता है एडवाइस देने का। एग्जीक्यूटिव कमेटी इज लाइक, ऐसे नहीं करो, एग्जीक्यूटिव कमेटी आर लाइक लाइन ऑथोरिटी, बिल्कुल, जो इम्प्लीमेंटेशन का भी केयर काम कर सकती है, जिनका काम होता है एग्जीक्यूट करने से, राइट, यानी कि ये डिसीजंस लेते भी ये कमेटी सारा का कुछ खुद ही करेगा, रिसर्च भी करेगा, अपना फाइंडिंग्स भी निकालेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करना, ठीक है ना, उसको क्रियान्वित करना, उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, राइट।
इसको ही हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पे जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है कमिटी द्वारा, उनके पास, इस कमिटी के पास पावर होता है, दे कैन टेक द डिसीजंस एंड दे कैन एग्जीक्यूट दोस डिसीजंस, राइट। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, जैसे कि एग्जांपल्स में आप जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो निर्णय लेती है टॉप लेवल मैनेजमेंट और अपने लिए गए निर्णय को एग्जीक्यूट भी करवाती है या करती है मतलब समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट, मिडिल और लोअर, ठीक है ना। तो उसको एग्जीक्यूशन का भी काम होता है, इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी। उसके बाद कौन है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी। ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी थोड़ा समझिए, ज्वाइंट, आप लोग आगे जब आप लोग को एचआरएम आएगा ना, थोड़ा पीपीयू के सिलेबस में भी मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ठीक है ना। सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल जरूर होता है, पर आप लोगों को भी पीपीएम पढ़ने के लिए उन्होंने दिया, यानी पीओएम। नेक्स्ट सिलेबस में ओनली क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपके नेक्स्ट जो आपका ईयर आएगा उसमें क्वांटिटेटिव ऑपरेटिव ही सब ऐसा है, मतलब उसमें आपको मिलेंगे कौन, मैं क्या पवन सर, नीतीश सर और पता नहीं भावना मैम मिलेंगी तो मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब देयर इज नो एचआरएम ओबी और पीओएम करके कुछ नहीं है। तो और नेक्स्ट उसके बाद जाइएगा तो आपको एक साथ दो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, एचआरएम भी और ओबी। मेरे ख्याल से ओबी को पहले रख देना चाहिए था और एचआरएम को लास्ट में रखना चाहिए था, लास्ट में जो थर्ड ईयर, तो कंफ्यूजन होता है। ओबी एचआरएम थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा आपके लिए, खैर ओबी एचआरएम पीओएम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो कंफ्यूजन भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो ज्वाइंट कंसल्टेशन है आप पढ़ेंगे एचआरएम में। बसंत, बिट्टू, यस बिट्टू नाम है ना तुम्हारा, तुम्हारे पीछे जो क्या है, सुमन, अच्छा ना बसंत, ठीक है। सुमन आप बात मत करिए, ठीक है ना। दोनों मैं फिर से पूछूंगी, मैंने क्या बताया अभी, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी कैसे बनता है। ज्वाइंट का मतलब मिला हुआ, यानी जहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक ग्रुप बने, इसका कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट है जो क्वालिटी सर्कल में चलता है। ये क्वालिटी सर्कल तो बोलोगे क्या होता है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी क्वालिटी को इंप्रूव करने का। जापान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे उन्होंने जीरो एरर टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया और बिना किसी एरर पे काम करते हैं। बिना किसी एरर करने का मतलब है 0.006 सिग्मा में कर देते हैं। इस तरह से 6 सिग्मा है, काइजन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है और क्वालिटी सर्कल है। क्वालिटी सर्कल ये एक सर्कल है जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों की भागीदारी होती है और ये क्या रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, ये रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक कोने में जो भी जरा सा भी फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को हटा करके क्वालिटी को इनहांस करेंगे। तो ज्वाइंट पूरा आपको यहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मिलकर के काम करें, मिलकर के गोल सेट करे और उसको एग्जीक्यूट करे कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। कॉमन इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए साथ आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जिसके एग्जांपल में क्वालिटी सर्कल है, जिसके एग्जांपल में एमबीओ अप्रोच है, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी। ये साथ बैठते हैं, साथ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान करते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वंस वन प्रॉब्लम गेट सॉल्व, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इसी को बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक मैन्युफैक्चरिंग में बस कमी है, मार्केटिंग में बस कमी है, एचआर फील्ड में बस कमी है, हर सेक्टर में कमी हो सकता है। हर सेक्टर की कमी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये सारे आपके चारों पांचों डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहे हैं तो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, सफाई में कमी हो सकती है, हाइजीन में कमी हो सकती है, मशीन के ब्रेकडाउन क्यों हो रहे हैं, इस चीज पे आप जा सकते हैं। कोई ना कोई कमी है, एक एक कमी को आप कीजिए, हाथ में लीजिए और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो इस अप्रोच में लाइजनिंग का काम करती है बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो हायर ऑर्डर मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट वो फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी वो क्या करता है, वो सारी सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है, ठीक है ना, बजट असाइन करने का काम करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन का काम अपने जिम्मेदारी पे लेती है। तो तीनों इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी बोले।
एंड द लास्ट वन इज स्पेशल पर्पस कमिटी। स्पेशल पर्पस कमिटी जो किसी खास, ऐसे भी कमिटी खास पर्पस से ही बनाया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस मैंने बोला है इसका, और पर्पस है रियल बजट दिखाना है, ठीक है ना, फिनेंशियल बजट बनाने के लिए कोई कमिटी बनाएगी, तो ऐसे किसी खास स्पेसिफिक पर्पस से बनाया गया, वो पर्पस सॉल्व हो गया, खत्म। एनडीए का ट्रुप जो होता है, जैसे हमारे यहाँ फ्लड आया था 2000, याद भी नहीं मुझे अभी, 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, नहीं 18 तो नहीं था, 19 था, यस 19 में पटना में जब बहुत ज्यादा फ्लड आई थी, बाकी जगह तो हमेशा आते थे, पटना में जब आई थी 2019 में, तो एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू, यस नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू, जब वो लोग आए थे, सुनो, तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया था, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस से आए थे, लोगों को यहाँ फ्लड में बचाने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए। और जब वो फ्लड खत्म हो गया, यहाँ से पानी निकल गया, रिलीफ मिल गया, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उनका काम खत्म हो गया। ऐसे कमेटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस कमेटी। समझ में आया? ठीक है, तो यही 4 तरह के कमेटी होते हैं और इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर। नेक्स्ट किसका क्लास है? थोड़ा एडवांटेज कर लेते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज वाली बात नहीं करेंगे। एडवांटेज मैं अटेंडेंस ले लूंगी, इतने ही बच्चे हैं ना जितने काम करना पड़ते हैं, राइट, कोई बड़ा अच्छा, हाँ पीछे से आ रहे हैं, ठीक है मैं ले लूंगी। नाउ कमिटी डिसीजंस आर बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजंस। आप लोग जानते हैं लाइन मैनेजर्स, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन क्वालिटी होता था वो अच्छा भी हो सकता था लेकिन खराब भी हो सकता था। स्टाफ लाइन स्टाफ का बेहतर होता था, क्यों? वही लॉजिक यहाँ पे है, कोई भी बता दो यार। ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है क्योंकि एक्सपर्ट्स होते थे, ग्रुप में तो लिया ही जाता है लेकिन एक्सपर्ट्स होते हैं साथ में। इसी तरह यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रुप बनाया गया है वो स्कॉलर्स का ग्रुप है, राइट, वो कॉम्पिटेंट पीपल का ग्रुप है, तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल डिसीजन से बेहतर होगा, ये चांसेस है, राइट। नेक्स्ट क्या है, बेटर इंटरेक्शन बिटवीन कमिटी मेंबर्स लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। यानी जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, कम्युनिकेशन, सिंस दे आर इन क्लोज एसोसिएशन, टुगेदर, कमिंग टुगेदर, मीटिंग होता है, फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बहुत कुछ सर्वे करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर है, कम्युनिकेशन बेहतर है, तो यहाँ पे क्या होगी कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतर इंटरेक्शन और बेहतर कम्युनिकेशन होगा, जिससे उनको एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। उसके बाद थर्ड क्या है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, तो हर मेंबर कोई चाहेगा किसी दूसरे मेंबर का टांग खींचना, एक ही गोल से दूर होते जाएंगे ना, क्योंकि दिस टीम्स इज has been formed to achieve certain goals। तो इसमें क्या होगा, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन होगा, यानी कि मिलजुल करके निर्णय लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, सबको मोटिवेशन मिलता है, राइट। टीम बना लो और प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन एक तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करो किसी चीज में, तो वो he or she feels demotivated, राइट, तो वो डिमोटिवेशन यहाँ नहीं होता है, क्योंकि सब लोग मिलकर के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। बेसिक्स फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर है तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। बेटर कमिटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, बेटर कमिटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो भी आपने डिसीजन लिया है आप उसमें अपना 100% देंगे, उसको किस चीज क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में, राइट। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वी एज ए टीम जब अच्छा करेंगे तो हमें टीम को, पूरे टीम को क्रेडिट जाएगा, ये राइट। इसीलिए आप टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, और इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि वो डिसीजन आपका अपना लिया हुआ है। When you take your own decision, you become more committed to that, your work, your goal, your whatever functions, right? जब आपके बदले में डिसीजन कोई और ले और आपको काम करने बस बोले, फिर आपका वो 100% नहीं आता है, लेकिन जब आप वो सलाह देंगे, बोले अच्छा ठीक है तुम ही करके दिखाओ, तो आप किसी भी कीमत पर उसको करके दिखाने की कोशिश करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि आप सही थे। समझ में आया? इसीलिए बेटर इन्वॉल्वमेंट। एंड द लास्ट वन इज बेटर सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं
जो मुश्किल से ऑब्वियसली कमिटी बनाया ही जाता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल नहीं है। मैंने अभी शुरुआत में ही बोला था कि कोई ऐसा हत्याकांड हो जाए, कोई ऐसा करप्शन हो जाए, या कोई एजुकेशन में डिपार्टमेंट में कोई आमूल चूल परिवर्तन करना हो, जैसे कि नया एजुकेशन पॉलिसी लाना है, राइट, तो जाकर के आप कमेटी बनाते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही हम कमेटी बनाते हैं। एवरी नाउ एंड देन हम हर बात पे कमेटी नहीं बनाते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन दे सकती है। क्लियर? ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। उसको देना है, रुको रख दो। इसमें कौन सा क्लास चलता है? अदरवाइज आप लोगों ने अमन सर से पूछा है क्या? कोई नहीं चलता इसमें, ऐसा नहीं होगा, तुमने नहीं पता किया होगा ठीक से। सेकंड शिफ्ट में, हाँ सेकंड, तो वही मैं बोल रही थी, किसी शिफ्ट में चलता होगा। Okay, attendance please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 14 है क्या? 13 है क्या? अभी किसने प्रेजेंट बोला था? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। पीछे ये जो बेंच है ना, उससे 2-3 बच्चों को यहाँ भेजो आगे, खाली है ये जगह। आ जाओ, तुम्हारे अगल बगल वाले को, उनको भी लेकर के आ जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ उनको आगे, और भी जो ना उनको भी एक दो को बोलो आगे आने। धर्मवीर नाम है, क्या नाम है? धर्मजीत, आगे आओ, आ जाओ, इधर आके बैठो। पीछे बहुत बातें करते हो तुम लोग, इधर आगे आओ।
तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं बना अभी तक। बैठो, थोड़ा जगह दो उसको। और भी कोई, अब तुम लोग मत सुनो। 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 91, 93, 93 है क्या? 93, 92 हो चुका। 94, 95, 96, 97, 98, 99। तुम कहाँ बैठना? ओके, ठीक। क्लास में